Sure, looking Friends, forward. Thank you. now it's time to introduce Sonuji. Already he spoke a lot and we know him. But we have a friend, a very dear friend of Sonuji with us, Simran Ahuja. And who knows every inch about his journey so far. So Simranji is Miss India 2013, an actor, an anchor, an author. Friends, she is a known name in Bollywood. She has anchored IFA Award, Filmfare Award. We all know much awaited award of Indian film industry. She has also anchored shows for Hollywood legends like Michael Douglas, Ronald Kickinger, Kai Griney, etc. She was invited as jury at the most prestigious international beauty pageants like Femina Miss India, Miss Teen International, Mrs. World, Miss Supermodel, and many more. She has authored a book titled Nine Night Navratri and was invited by BBC for an interview on it. She is a proud recipient of the prestigious Dada Saheb Phalke International Film Festival Award. It's my pleasure having your company, Simran, and we would like you to kindly introduce Sonuji for us. Thank you. Namaste. Thank you so much for the kind words, Balmohan Agarwalji. It's absolutely my pleasure. Thank you for this wondrous invite. I've been so fortunate to having met Sonuji on the red carpet or TV Asia for the show, or it could be on the ramp. Yes, but today is utmost special. My humble thanks to Bharat Goradia ji for truly making it possible. Ladies and gentlemen, we all come across different walks of life and we meet different people on a day-to-day basis. Some of them inspire us, some deeply impact us, and some just turn our lives around by an absolute 360 degrees. We have amongst us one such personality today who not only has been an eminent, absolutely in his profession, but also personally to various people in different walks of life, and is now attaining a stature which is holier, bigger, and so celestial that a major stratum of people have bestowed him with the honor of Masiha. Sonu Sood, an engineer, an actor, humanitarian, and a Masiha. A gallantly ambitious yet humble young man from Moga, Punjab, who set out to fulfill his dreams, accomplished himself in numerous genres, but little did he know that one day, in the process, he will become an inspiration to millions and a divine existence for plenty in need during trying times. A scholarly electronic engineer, path-breaking model, an established actor, producer, but above all, a prominent humanitarian who has brought smiles to masses in dire straits. In May 20, during the nationwide lockdown during the COVID-19 pandemic, Sonu Sood helped thousands of stranded Indian migrant workers to reach their homes, arranging buses, special trains, chartered flights. In July 20, arranged a chartered flight to bring home 1,500 plus Indian students who were stranded in Rajasthan, flying them from Bishkek to Varanasi. His charity during the pandemic was lauded and he was hailed as a real life hero. Although he kept working as if almost oblivious to the fame that he was being showered upon. So much, so many smiles, and of course, prayers. He helped 101 medical students, the farmers, everyone who needed help. And recently, on his birthday, he launched a website and app called Pravasi Rojgar to help migrant workers to find suitable jobs amid the pandemic. Deriving inspiration from his dear mother, Professor Saroj Sood, who also endured a massive contribution to the society by imparting knowledge through her teaching free of cost. Mr. Sonu Sood tied up with universities across the country to launch a scholarship program, which he just spoke about. He's vowed to diversify the areas of scholarships in medicine, engineering, artificial intelligence, robotics, cybersecurity, fashion, sports, journalism, among other eminent courses. Sonu Sood has been an embodiment of aid and assistance to the needy. And for the past 5 months, he's been literally living with the migrants for 16 to 18 hours every day and sharing their pain. He has a bear witness to all the smiles on our faces and the tears of happiness in their eyes. A man who has pledged to be the relentless in his pursuit of sending all migrants to their home. Ladies and gentlemen, adjectives fall short to describe a man of his stature. Although I would request all of you
for standing ovation. But since we are all sitting, I would request you all to please sit tall. We are all on mute, and please put your hands together and join me and support me to invite, as we call him, the Messiah, Sonu Sood, please. Can we please have the audio visual? भगवान कैसे होते हैं अगर आपको लाइव देखना है तो सोनू सूद को देखिए। बहुत अच्छा, but anyway you are very positive and you are doing so much seva and you have a very pure heart and let me congratulate you for doing wonderful work. आप ऐसे करते जाओ। लेकिन जहां तक सोनू सूद जी का सवाल है तो उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने वालों के पीछे खड़े होना चाहिए। जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो ये रोल अदा कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने सड़क पे खड़े लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। सो इन जरूरतमंद लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में जो मसीहा बन के सामने आया, वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम सोनू सूद। पर एक ऐसे नेशनल हीरो आने वाले हैं जो इस रियल वर्ल्ड के ऐसे किरदार हैं जिनसे हर इंसान को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो बेस्ट के मंच पे आ रहे हैं द बेस्ट ह्यूमन बीइंग सोनू सूद। मौजूद हैं, मुलाकात कीजिए अभिनेता सोनू सूद से जो कि अब रियल लाइफ के ही हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो बन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनू आपका इस मजे लेने वालों की इस भीड़ में सोनू सूद जैसे कुछ लोग फरिश्ता बनकर भी सामने आए हैं फिल्मों का। सोनू भाई, एक स्पेशल 2 लाइन आपके लिए कि तू विलेन भले है फिल्मों का पर समझे सबके दर्द प्रिय, कितने भी चुलबुल आए जाएं छेदी है असली मर्द प्रिय, और आखिर और के दर्द को देख जो जाए उसमें कूद प्रिय, वो थके पैर भी याद रखेंगे एक था सोनू सूद प्रिय। थैंक यू। एवेंजर्स की एंड गेम तो आपने देखी होगी। आयरन मैन तो शायद नहीं रहे पर उनकी जगह लेने आ गए हैं इंडिया के नए सुपर हीरो, इंडिया के एवेंजर सोनू सूद। तो Hi everyone, thank you so much. First of all, I don't know, this introduction was, whether I deserve this introduction or not, but I'm just a common man who just wanted to do my bit, and I also felt the same way that every individual in this country felt for these migrants, and believe that, we have to come forward and support these people, and we had to send them back to their homes. I remember when I sent the first set of people, there were almost 350 people for Karnataka, and they were planning to walk to Belgaum, and with little kids, 20 days, 1 month old kids in their arms, and they said, we want to go back to Bangalore, can you pack us some fruits and all. I was distributing food at a place in Thane called Kalba Chowk. And I said, just give me 2 days and I'll get some permissions right for you. And then I got the permissions and somehow I was able to send them back. So from Thana, when I was coming back to Andheri, I saw these hundreds and thousands of, migrants standing, waiting with the little kids, crying. And everything became like a slow motion, which the way you watch in movies, everything became in slow motion. And I said, this is not a story of these 350 people that I've sent back to their homes. This is a story of millions who are stranded across the country. So I straight away went to a police station. I asked them, I need to send them back, how I'm going to send them back. They said, it's not possible, sir, it's a lockdown. And you can't send them back. And I said, get me the guidelines. I got those guidelines. I got the medical done for all of them. I got the permissions done from local police station to the DCP to the district magistrate in the city or the district they were supposed to travel. And this is how the whole journey started. And when I went to see them off,
you know, they had tears in their eyes. They were smiling, and I realized that I have to do this for every single person who standard. And then I started this whole journey. And in all these months, from Jammu Kashmir to Kanyakumari, almost 1.5 lakh people, we had sent them back to their homes, safe and sound. And this is how the whole journey started. Now I'm connected with most of them, you know, where I know each and every single district in UP, Bihar, Uttar Pradesh, all these places. And I feel that, you know, I have families in every single state. So I feel really pleased, and I think I reinvented myself. I feel, you know, as an actor, I've done many roles. Hello, can you hear me, sir? Yes, please. शेखर Yes. में तो अभी भी दिखा तो रहा है वहाँ कोर्स Yeah. में दिखा रहा है, अभी देख लो अगर हो जाए. Please mute yourself. Okay, sorry. It's okay. We are all facing these technology issues every single day, but it's okay as long as we are all together, connected. दिल जुड़ने चाहिए. Zoom का कोई टेंशन नहीं है. So, which was, I would say, the most special experience of my life. You know, I must have done almost close to 100 movies in different languages, from Tamil, Telugu, Kannada, all these languages. But the most special film that I played was the film. आवाज क्यों चली गई? आवाज बंद हो गई. Yes, Sonuji, I think by mistake somebody's muted you. Yeah. It's okay, sir. No worries. We are learning every day, so it's okay. So I feel, you know, this was the most important journey of my life. This was the most important character. This is the most important role that I played, and I think sometimes God chooses you as a catalyst to do something right in life. My mom and dad sitting in heaven must have planned this. Okay, Sonu, you deserve to do all this good, and I was able to do whatever little I can. But it was kind of a life-changing experience for me. Like I was I'm getting a lot of messages that please unmute us. We want to talk to you. Yes, we will unmute you and we will connect. I'll answer a few questions also with you, but just I'll take 5 more minutes to share my experience. You know, as a member of Rotary, you know, you guys are doing phenomenal job, you know, reaching across the globe. But I believe that when you stay connected with an individual patient, it's very, very important. You know, in these months, I got a lot of offers for all these webinars and, you know, okay, let's stay connected, let's meet. आप हमें चार्ज कीजिए, आज हमें मोटिवेट कीजिए. तो मेरा सबसे एक ही सवाल होता था कि मेरे 20 मिनट आने से, आपसे बात करने से मैं आपको जिंदगी में वो मोटिवेशन नहीं दे सकता जो आप खुद को दे सकते हो. मैं क्या करूंगा मोटिवेट? मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि मैंने कैसे भेजा, मैंने कैसे खाना खिलाया होगा, मैंने कैसे सर्जरीज की होगी. लेकिन दिस इज not what's going to motivate you. What's going to motivate you is a personal experience. जब आप किसी एक की जान बचाते हो, किसी आप एक की फीस भरते हो कॉलेज की, जिसका शायद करियर खत्म हो गया होता अगर उसकी आप फीस नहीं भरते, या उसको फोन नहीं लेकर देते अगर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं जाता, या आप किसी की फीस माफ नहीं करवाते. बहुत सारे फोन कॉल्स. आप मुझे कई लोग पूछते हैं, यार सोनू इतना कैसे कर लेता है अकेला. मैं एक केस के लिए भी कई बार मुझे किसी सीएम के स्टेट से बात करनी पड़ती है, मैं उनसे बात करता हूँ कि सर एक केस पड़ा हुआ प्लीज सॉल्व कीजिए. वो कहते नहीं, हम सोनू पक्का करेंगे सॉल्व, और वो सॉल्व हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल टच जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़े. अगर आप, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन के साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल के साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में एक नया आइडिया होगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ूं. मैंने आज, जैसे मैंने बताया कि एक मैंने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम मैंने आज लॉन्च किया. मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ पढ़े थे या आज ये अच्छी जगह पर पहुंचे, मैंने उनको बोला कि यार तुम सबको मुझे अपने अपने कॉलेजेस में सीट्स देनी है, और मैं आपको वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स लाकर दूंगा देश भर के कोने भर से जो डिजर्व करते हैं उन कॉलेजेस में पढ़ना, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते. सो आज हमने डाले हैं ऑलमोस्ट अभी 25-30,000 रिक्वेस्ट ऑलरेडी, ईमेल्स आ चुकी है हमारे पास. सिर्फ कुछ ही घंटों में और आ जाएंगी, लाखों में आएंगी. उन लोगों में हम लोग चुनेंगे और उसमें से भेजेंगे. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी, आपका रिश्तेदार, आपका मामा, भांजा, अंकल, आंटी, एनीवन हु इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ medical, any kind of educational connection, any kind of thing that can bring back something good to the society,
प्लीज गेट देम ऑन बोर्ड, प्लीज गेट देम कनेक्टेड विद अस कि यार मैं एक सर्जरी कराता हूँ, मैं एक इंसान की एक सिर्फ उसकी मेडिकल का मैं आज उसका बिल दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे बोला कि मैंने जब इलाज इंडिया जो शुरू किया, जो मैं 1 हफ्ते में नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर रहा हूँ, मैं आप सबसे शेयर करूंगा, मैंने प्लेज लिया सब डॉक्टर से, हिंदुस्तान के जितने लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ और अभी और भी लोगों से जुड़ रहा हूँ, कि आप एक सर्जरी के लिए मुझे वादा कीजिए कि आप प्लेज लीजिए कि पूरी जिंदगी आप एक सर्जरी फ्री में करेंगे, सिर्फ एक। और अगर आपकी 2 की इच्छा हुई 2 कीजिए, 3 की इच्छा हुई 3 कीजिए, लेकिन आप एक तो पक्का करेंगे। और अगर आप 50,000 1 लाख डॉक्टर हमारे साथ जुड़ते हैं और ये लोग जो हमें अप्रोच करते हैं और हम उनको मैप करते हैं कि एक कोई यूपी में है, बिहार में है, कैलकाटा में, हम उनको मैप कर देते हैं कि ओके सोनू सूद कैलकाटा का डॉक्टर है, उसको मैप कर दिया, उसके साथ उसने सर्जरी कर दी, उसकी जान बच गई। तो हमें वो जोड़ना है, हमें वो मैप करना है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि अगर 50,000 1 लाख सर्जरीज हम उनको जाने बचा सके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मकसद ये है आपके साथ जुड़ने का। हम 20 मिनट में, आधे घंटे में ये ये कनेक्शन जो है हमारा खत्म हो जाएगा जूम का। फिर हम लोग मैं भी कुछ एक्सपीरियंसेस लेके आऊंगा कि बहुत मजा आया मुझे जितने रोटरी के मेंबर्स के साथ बात करने के लिए, आप लोगों को भी आया होगा कि यार सोनू ने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत मजा आया। लेकिन हम फिर भूल जाएंगे, फिर हम लोग फिर व्यस्त हो जाएंगे, अरे यार रात को खाने में क्या बनाया है, चलो रात को टेलीविजन देखते हैं, फिर भूल जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में एक इंसान बैठा आपका इंतजार कर रहा है उस फोन कॉल का, कि आप उसका फोन उठाएंगे या आप उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, ताकि उसकी जिंदगी बदलेगी। तो हमें वो इंसान ढूंढना है। मैं सुबह 6:30 7 बजे से उठता हूँ, रात को 2 बजे तक मैं सिर्फ लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, ट्विटर के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू। कई लोग फीस नहीं भर पाते, मैं उनके चेयरमैन से बात करता हूँ कि सर मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ, प्लीज इसकी फीस माफ कर दीजिए, इसकी फीस 50% कर दीजिए, बाकी की मैं भर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं आप सर मत भरिए, हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, बहुत छोड़ देते हैं, तो 50% छोड़ देते हैं। लेकिन लोगों की एडमिशंस हो रही हैं, लोगों के करियर आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे जुड़ रहे हैं। तो हमें ये करना है। आपको पता नहीं कि एक फोन कॉल जो मैं एज एन एक्टर हूँ या कोई क्रिकेटर है, जो भी रिसोर्सफुल इंसान है, उसका एक फोन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा कोई चेक काट के देना है कि मैं चेक काटूंगा तो शायद उसकी सर्जरी हो जाएगी, मैंने 10 लाख का चेक काट दिया, देखो मैंने बहुत बढ़िया आज चैरिटी का काम किया। आपको वो फोन कॉल्स करने पड़ेंगे, आपको उनसे बातें करनी पड़ेंगी, आपको उनको बताना पड़ेगा, तब वो बदलेगा। मैंने अपने घर के जो मेरे नेव्यू नीसेस आते हैं उनको काम पे लगा दिया कि चलो 4-5 केसेस सॉल्व करो, उनको मजा आ गया। अपने बच्चे जो हैं आपके, वो इस समय टेलीविजन में, पबजी में कहीं पे बिजी होंगे, नीचे खेलने में बिजी होंगे, उनको बोलो कि हम तुम्हें एक केस दे रहे हैं, सोनू ने दिया है, मुझे बताइए, मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। बालमोहन जी को बोलूंगा कि मैं आप कनेक्ट कीजिए, मैं आपको केसेस दूंगा कि आप बात कीजिए। आप जब उस इंसान को जो कहीं पे एक यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में, एक किसी कोने में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, and if he is not able to reach out to you, and one phone call that comes, okay, I am calling from Sonu Sood's team, what is the problem you have? So that one phone calls gives so much ray of hope in their life. They know कि हम लोग बच जाएंगे, हम शायद वो जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बच जाएंगे। मैंने कॉल पीपल से दैट कि यार आप हमें अंडे की रेडी लगा दीजिए, आप हमें एक किराने की दुकान खोल दीजिए। मैंने बहुत सारी किराने की दुकानें भी खुलवाई, अंडे की ठेले भी लगवाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग that you are a part of an institute who is doing so well, who is making so much of difference in others' life. As an individual, you have to experience, you have to connect to the doctor, you have to request to the doctor, you have to speak to the doctor कि क्या पेशेंट की क्या हाल है, मरीज का क्या हाल है, उसको कहाँ से कहाँ उठाकर उसको कैसे पहुंचाना है। मैं कल आपको छोटी बात बताता हूँ, ट्विटर पे कोई एक बंदा बैठा था भोपाल के अंदर, उसको छत्तीसगढ़ जाना था, किसी ने कैसे ही फोटोग्राफ खींच के उसको पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, बोला कल्लू भैया हमारा नाम है। कहाँ जाना है, हमें छत्तीसगढ़ जाना है। कैसे जाओगे, हम पैदल रास्ता ढूंढ रहे हैं जाने का, क्योंकि रास्ता नहीं। तो बोला कि हम आपकी आवाज आगे पहुंचाते हैं, शायद सोनू भैया देखेंगे तो पहुंचा जाएंगे। वो मुझे मैसेज आया, मैंने कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया कल्लू भैया के साथ और उनको उन्होंने छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया। मेरा सिर्फ सोचने का मकसद है कि अगर उस समय मैंने ट्विटर नहीं देखा होता या मैंने मैसेज नहीं देखा होता, तो शायद वो कल्लू भैया या तो पैदल जा रहे होते या वहीं पे फंसे होते। मैंने उस समय देखा क्योंकि कल्लू भैया की कहीं भगवान को आवाज गई होगी और वो मुझ तक पहुंची होगी, जिसके कारण मैं कनेक्ट कर पाया। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्शन जुड़ा है। अगर मैं 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, उन 1000 में से शायद वो 10 लोग होंगे
जिनको शायद मैं कनेक्ट कर पाया हूँगा कि हमें क्या करना है। हम जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, और वो अभी आप करते रहिए, लेकिन हमें अभी वो करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स, यू हैव टू कम आउट से कि नहीं, आज अगर दिन में उठाऊं तो मुझे एक अच्छा काम जरूर करना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, लॉकडाउन है, इतना कॉलेजेस में जाना नहीं पड़ता होगा, होम में क्लासेस होती होंगी, बाहर शायद ऑफिसेज में नहीं जाना पड़ता। सो आई वुड लाइक टू से दैट find those 10 minutes out of those 24 hours you have to do something right which you can do on a personal note. आप पर्सनल लेवल पे बात कीजिए। हम लोग सर्जरीज करा रहे हैं 20-25 लोगों की, बालमुन जी कनेक्टेड है, आप उनके बोलिए कि यार एक बालमुन जी आप मुझे बताइए, मैं फॉलोअप करूंगा पेशेंट के साथ। मैं आपको पेशेंट देता हूँ कि आप ये पकड़िए पेशेंट, और ये बंदा कर्नाटका के अंदर है, ये बंदा झारखंड के अंदर है, वो कब उसकी ट्रेन पकड़ेगी, कब उसकी फ्लाइट पकड़ेगी, कब मुंबई में लैंड करेगा या दिल्ली में लैंड करेगा, उसको फॉलोअप करके आप उसको दुरुस्त बनाइए। वो जब बच्चा जिसकी आज हमने उसको ठीक किया, जब वो बड़ा होगा, वो ता जिंदगी उसकी जो सांसें चल रही हैं वो आपकी दी हुई सांसें हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि करना बहुत कुछ है, सोचते बहुत कुछ है, सपने बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं कितने पूरे कर पाएंगे। बट आई टोटली बिलीव कि इस जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ, मुझे किसी ने पूछा, बहुत बड़े बड़े लोग मिले मुझे इस जर्नी के दौरान, उन्होंने पूछा कि तुमने इतने लाखों लोगों को घर कैसे भेज दिया, जब सरकारें नहीं भेज पाई तुमने कैसे भेज दिया इनको। तो मेरा एक ही उनसे जवाब था कि जब आप हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग बोलते हैं कि यार हम टैक्सेस भरते हैं, ये काम सरकार का है, हमारा एमएलए है लोकल, हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, उनका काम है, हमने उनको वोट दिया है, चुना है। अगर वो आपके हिसाब से नहीं काम करते तो मत कीजिए, आप खुद एमएलए बन जाइए, खुद एमपी बन जाइए, खुद आप वो इंसान बन जाइए कि मैं यार नहीं वो कर रहा है, मैं काम करके आऊंगा। सड़क मेरी नहीं बन रही है, चलो 10 आदमी इकट्ठे करेंगे, हम लोग सड़क बनाएंगे। छोटा सा मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक आंध्रा के अंदर एक जगह है, दिस प्लेस कॉल्ड वाइजाग नगरम, कुछ दिस वेरी इंटीरियर प्लेस इन आंध्रा। सो आई गॉट दिस वीडियो समवेयर दैट दीज guys were struggling to make a road in the village from 1945. They've been sending applications, so they never had any road in their village. So when they saw me doing what I was doing, they got inspired. They said, okay, if no one is helping us, we have to do it. So then they collected 2,000 rupees from every family in all those 4 or 5 villages, and they made a road on their own, and they made the road on my name. This is so and so road. We got inspired from it. So what I want to say is that I want to get inspired by you. मुझे लगना चाहिए कि यार मैं करता हूँ, जब हमारी मीटिंग खत्म हो तो आप बालमोहन जी को 10 फोन आने चाहिए कि अरे मैंने एक 10 20 उस कॉलेज में मैंने सीट्स अरेंज कर दी हैं, मैंने 15 उस कॉलेज में सीट्स अरेंज कर दी हैं, मैंने इतनी सर्जरीज कंफर्म कर दी है। जो रोटरी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा अगर एक भी सर्जरी हम एक्स्ट्रा कर पाते हैं कहीं भी देश के कोने में, तो हमने एक जान में कंट्रीब्यूट किया। तो हमें जो हमारे पिगी बैंक में जो चीजें हैं, हमें उससे ज्यादा बाहर निकल के करना है। वी हैव टू डू व्हिच वी नेवर थॉट दैट वी कुड डू। आई नेवर न्यू एनी वे टू सेंड दीज माइग्रेंट्स बैक टू होम। मुझे कोई उसका चैनल नहीं पता था, मुझे कोई प्रोग्रामिंग नहीं पता थी, पर पता था जब 7.5 लाख लोगों ने मुझे भेजा कि मेरे को आना है, तो देन मुझे लगा कि मुझे भेजना, और मैंने भेज दिया। सो आई वुड लाइक टू से कि हम लोग सब जुड़े हैं आज कोई रीजन के कारण, एंड लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, एंड आई एम श्योर कि we will make some difference, and we'll give something back to the society. And I think that's what I've learned in all these months, and I'm still trying to learn from you also, and it's great to connect with you. Thank you so much. Thank you, Sonuji. Thank you very much. Thank you, Sonuji. Balman, just a moment. Sonuji, on behalf of District 3141, I can assure you we will connect with you in the next 15-20 days, subject to your time. Great, sir. Yeah. Great, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Is Sekharji here? He is there. He is there. Okay. Sekharji, it's our pleasure to present a Vocational Excellence Award to Sonuji, a well-deserved award, and I request you to kindly do the honors. Saurabh, can you share the certificate, this award? Ji, sir.
मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा अनम्यूट भी कर दीजिए लोगों को कि थोड़ा हेलो हाय। वो सर मैं थोड़ी देर में करता हूँ सर, आफ्टर 10 मिनट्स। काफी लोग बोल रहे हैं, लोगों को नाराज नहीं होने चाहिए। नहीं बिल्कुल सर। सौरभ, एनी प्रॉब्लम? Saurav, we are waiting. Papa ji meeting. Saurav, we are waiting. Manish? Saurav has some connection issue. I think he has left. I think he will. Saurav, by some mistake, has got logged off. So, no problem. We have to shift it little bit. So before we do this, I request Gopal ji for the question and answers. And Gopal ji, please take over. You must be having many questions. Already we are seeing on the screen. So over to you, Gopal ji. Thank you, Balmohan. Thank you so much. Sonu sir, good evening to you. Good evening, sir. कुछ लम्हे जिंदगी में ऊपर वाला देता है और वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। सोनू सूद से 10 मिनट का वार्तालाप मेरे लिए जिंदगी में अनमोल घड़ियां रहेगी सर। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं। आज सुबह सुबह बॉम्बे टाइम्स में हेडलाइंस में पढ़ा, सोनू सूद कमिंग आउट विथ स्कॉलरशिप ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट मदर प्रोफेसर सूद। बहुत खुशी हुई। मैं हमारे शेखर मेहता साहब यहाँ पर है, थोड़ा परिचय दे दूं। रोटरी भी लिटरेसी प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। 100% लिटरेसी इन फ्यू इयर्स टू कम। बैक टू स्कूल एक हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर हम जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके फीस की कमी रहती है, उनको सपोर्ट करते हैं। लाखों बच्चों को सपोर्ट किया गया है और ऐसा ही स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कुछ क्लब्स कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद में आपसे कभी मुलाकात करेंगे हमारे सीनियर्स, और जरूर से उस मुहिम को हम आगे लेके जाएंगे। इसके ऊपर एक मुझे शायरी याद आती है। चला था मैं तो अकेला ही जानिबे मंजिल, चला था मैं तो अकेला ही जानिबे मंजिल, मगर राह में लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। ऐसा ही कुछ आपके साथ में हुआ सर? कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था। आपको भी कोविड हो सकता था, आपको भी कुछ तरह की दिक्कतें हो सकती थी। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट आपको रहा होगा। व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू टेक दिस टास्क एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस? Sir, जब मैं the first time when I went out of my house, I remember my family asking me, "Are you sure you want to go out? You know, it's not safe. You know, we all our kids are here at home." So I said, "नहीं जाना जरूरी है, because अगर हम नहीं बाहर निकलेंगे तो बाहर जो लोग ऑलरेडी सड़कों पर हैं उनका कौन ध्यान रखेगा?" और जब मैंने उनको कनेक्ट करना शुरू किया, उनको भेजना शुरू किया, जो हर रोज उनको भेजने, जो खिड़की से, जब बसेस की खिड़की से जो लहराते हुए हाथ दिखते हैं ना सर, उससे खूबसूरत कोई नजारा नहीं होता। उनके चेहरे पर जब उनको सीट मिलती है, जो उनके चेहरे पर वो खुशी, जो स्माइल होती है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा सेफली अपने बच्चों के साथ, उससे बड़ी कोई मोटिवेशनल चीज नहीं होती। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नहीं बोलता कि मैंने ऐसे कोई बहुत कमाल का काम किया है। आप जितने लोग हैं, अगर आप मेरी जगह, सोनू सूद की जगह आप भी होते और आप उनको देखते, आपको थैंक्स करते हुए, घर जाते हुए आपको देखते, तो आप भी हर रोज जाते, उनको किसी तरह घर पहुंचाने की कोशिश करते। आई थिंक ऑल दोज पीपल who I got connected with, I think their smiles, their wishes were my source of inspiration, and that's why I could survive in these COVID times. Great sir, short of words to really you accepted this challenge. हम लोग टीवी पे रोज देखते थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। Salutation to you sir, salutation to you for this very part. सुना है सर, आजकल जो बच्चे हो रहे हैं उसमें आपका नाम हर जगह जोड़ा जा रहा है। जी सर, जब मैं बॉम्बे में नया आया था तो किसी ने बोला यार कि सोनू सूद नाम का कोई एक्टर नहीं हो सकता, कि जब आप सोनू सूद बनेगा तो लोग बोलेंगे क्या एक्टर का नाम है, बोले सोनू सूद। यार सोनू सूद कोई नाम थोड़ा है, तो बच्चों के नाम होते हैं सोनू, तो कुछ नाम चेंज करो आप अपना। तो मैं बड़े नाम कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग गया कि आर्यन बनाए कुछ नाम अपना, कुछ आर्यमन बनाए, कुछ बड़े नाम मैंने कोशिश किया।
फिर मेरे जहन में आया कि अगर ये सोनू सूद ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है तो सोनू सूद आगे भी ले ही जाएगा। तो मैंने नाम चेंज नहीं किया और नाम वही रखा। और आज जब इतने 18-20 साल बाद लोगों ने अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पर रखने शुरू किए और बड़े लोगों ने रख लिए हर स्टेट्स के अंदर, तब लगा कि शायद मैंने अच्छा किया और नाम चेंज नहीं किया। अगर नाम कुछ चेंज किया होता तो शायद कुछ और नाम रखे होते लोगों ने। सर हमारी उम्र थोड़ी बढ़ गई सब लोगों की। अगर हम लोग बच्चे करने के काबिल हो सकते हैं तो हम भी हमारे बच्चों का नाम सोनू रखेंगे सर, ये पक्का वादा रहा। अरे सर फरहान अख्तर का एक ट्वीट आपके बारे में, मुंबई से दूर भागी पहुंची गर्भवती महिला ने बच्चे का रखा सोनू नाम। प्राण साहब का राजेंद्र प्राण साहब का इतना खौफ था, कोई भी माँ अपने बच्चे का नाम प्राण कभी नहीं रखती थी, लेकिन आज सोनू नाम सबका ऐसा हो गया कि काश मेरे बच्चे का नाम सोनू रख दूं। नहीं सर, मैं सर प्राण सर तो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे और हम हमेशा इंस्पायर रहे हैं। जो अच्छाई होती है इंसान की वो खुद आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है। बट जैसा मैंने बोला कि जब मैं मुंबई में आया था तब पहचान किसी से नहीं थी। 5,500 रुपये लेकर आया था मैं। एक इंजीनियर था और बड़े सपने थे, पर पता नहीं था कि ये नाम एक दिन थोड़ा फेमस हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये दुआएं थी सर सबकी, जितने लाखों लोगों को मैं भेज पाया उनकी दुआएं तब भी थी और आज भी है कि आज मैं आपके सामने सब लोगों के पास बैठा हूँ, जुड़ पा रहा हूँ, नया एक परिवार मुझे मिल गया है। तो आई थिंक वो दुआएं होती हैं जो आप अपने लोगों से मिलवाती हैं। और आई थिंक इस दुआओं के बल पर ऐसे ही सर आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते जाएंगे। सर एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ लड़कियां खेत जोतने के लिए खुद ही लग गई थी, उनके पास में शायद बैल वगैरह नहीं थे और आपको कहीं से खबर मिली तो आपने उनको ट्रैक्टर वगैरह दे दिया। ये सिर्फ लड़कियां थी इसलिए दे दिया कि बाकी अगर मर्द होते तो भी दे देते थे आप ट्रैक्टर? सर तो भी दे देते थे, क्योंकि जो फादर थे वो पीछे जोत रहे थे। वो बोलते हैं ना सर कि आप देते नहीं, वो उनकी तकदीर होती है, सिर्फ आप जरिया होते हैं। मैंने वो आंध्रा के अंदर था, चित्तूर एक जगह है, तो मैंने रात को 8:30-9 बजे वीडियो देखा। मैंने फोन किया उनको और उन्होंने बोला कि यहाँ मैं तिरुपति के पास बैल बड़े अच्छे मिलते हैं, अगर आप मुझे बैल ले दोगे तो बड़ा कमाल हो जाएगा। तो मैंने पता किया, बैलों के बारे में पता किया। मैंने बोला कि चलो कल बैल लेके देंगे इनको। और फिर मेरे माइंड में आया कि अगर इस गाँव के अंदर बहुत गरीबी थी, उस गाँव के अंदर, कि अगर एक ऐसा ट्रैक्टर लेके दे दिया जाए ताकि गाँव के सब लोग यूज करें उसको, दे कैन यूज टू प्लाउ देयर फील्ड्स, सो इट विल बी वेरी नाइस। सो मैंने बोला कि कल आपके जो खेत है उसमें एक ट्रैक्टर होगा। मैंने उस दिन संडे था, लॉकडाउन था, सब बंद थे, तो मैंने फिर फोन किया पंजाब में। मेरे एक अच्छे दोस्त है करण, मैंने उनको बोला यार पंजाब से ट्रैक्टर भिजवाएं, कहाँ से भिजवाएं, लेकिन आंध्रा में ट्रैक्टर भिजवाना है। तो हमारे एक दोस्त है मित्तल साहब सोनालिका ट्रैक्टर वाले, मैंने उनको बोला कि सर एक आंध्रा में ट्रैक्टर पहुंचाना है, संडे है, बंद है, सब पहुंचाना है। लेकिन वो 4:30 बजे सर वो ट्रैक्टर पहुंचा, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ और मैंने उस फार्मर से एक वादा लिया कि आपका तो हल जोतेगा ही जोतेगा, पूरे गांव का जो है ये खेत जोतेगा जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। और वो गांव में अभी अच्छी खुशहाली है, सब लोग शेयर करते हैं। एंड आई बिलीव दैट दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल दैट हैपेंड इन माय लाइफ। इट्स अ ग्रेट लर्निंग सर। हम लोग कहीं भी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं सेवा करने की। आपको कहीं मौका मिले कुछ भी तो इस तरह की सेवाएं की जा सकती है। सर मैं आपको ना, सॉरी टू ऐड इंटरप्ट यू इन दिस, कि बिहार के अंदर जब बाढ़ आई तो छपरा और मधुबनी इन जिलों के अंदर एक बहुत इंटीरियर में एक गांव था, जहां पर जब बाढ़ आई तो पूरा का पूरा जो गांव था काफी बह गया। उसमें एक परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई उसमें, और उसकी एक भैंस थी, उसकी भी वो भी बह गई बाढ़ के अंदर और घर टूट गया था। तो मुझे किसी ने फोटोग्राफ भेजा कि इसकी भैंस भी मर गई है, उसका जो बेटा है उसकी भी डेथ हो गई और घर टूट गया। तो मैंने बोला कि चलो इसका घर बनाते हैं और इसके लिए भैंस लेके देते हैं, बेटा तो मैं कहीं नहीं ला सकता। फिर हमने उसके लिए वो घर भी बनवाया और उसके लिए भैंस ढूंढी बिहार के अंदर बहुत जगह से कि अच्छी भैंस मिले, ऐसा ना हो कि गलत भैंस आ जाए, दूध ही ना दे। तो हमने अच्छी वाली भैंस ढूंढ कर उसके घर पहुंचाई ताकि वो 10 लीटर रोज दूध दे, और आज वो परिवार वापस खुशहाल हो गया है। तो मकसद ये है कि सर आप चाहे ट्रैक्टर दें, चाहे भैंस दें, चाहे आप उसको किसी को कुछ भी दें, लेकिन जरिया जो है आप तभी बन पाओगे जब आप कोशिश करोगे जरिया बनने की।